ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। IBT ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਕਲਾਸ 1 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ठीक है जी, भाषा के नियमों, भाषा के व्याकरणिक नियमों पंजाबी व्याकरण कहते हैं। उस तरह जिवें असीं आपां कहा सी कि व्याकरण के 4 भाग ने। पहला है धुनीबोध, उस तो बाद है शब्दबोध, दैन उस तो बाद है वाकबोध, ते चौथा ते अखीरला बोध है अपना अर्थबोध, जिहदे विच असीं अज पहला बोध शुरू करन जा रहे हैं, जिन्हों असीं कहने हैं धुनीबोध। धुनी मैंने हुंदा है साउंड, आवाज़। तो आवाज़ किन्ना तो बनती है? निक्के निक्के अखरां तो। फॉर एग्जाम्पल आ, ई, ऊ, ए, ये सारिया की ने आवाज़ां ने। तो असीं इहनूं कह सकते हैं कि इहदा दूजा नाम असीं वर्णबोध भी कह सकते हैं। धुनीबोध का दूजा नाम है वर्णबोध। ठीक है जी। हुण इहदियां दो डेफिनेशनस ने। एक तो हैगी बिल्कुल बच्चों वाली डेफिनेशन, जिन्हों असीं कहने हैं कि व्याकरण का वह भाग जिस भाग तो सानू धुनियां का ज्ञान होवे उहनूं असीं कहांगे धुनीबोध या कह लो वर्णबोध। बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल ये एग्जाम्पल या ये डेफिनेशन सही नहीं हैगी, क्योंकि एग्जामिनर तुहानूं कदे भी इन्नी सौखी डेफिनेशन चों क्वेश्चन नहीं पाऊगा। क्वेश्चन की पाऊगा? क्वेश्चन ये आऊगा कि व्याकरण का वह भाग जिस विचों स्वर, दुत्त अखर, लगा मात्रा, लगाखर, व्यंजन, स्वर धुनियां का ज्ञान होवे उहनूं की कहोगे तुसीं? तां उहनूं असीं कहांगे वर्ण बोध या कह लो धुनी बोध। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुसी कि व्याकरण का वह भाग जितों सानू स्वर का, लगा मात्रावां दा, लगाखरां दा, स्वर धुनियां दा ते व्यंजनां दा ज्ञान हुंदा है, उसनूं असीं कहने आ धुनी बोध। ठीक है जी। हुण पहली गल ये आउंदी है कि स्वर की ने। इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है आपां। इंग्लिश ग्रामर दे विच सब तो पहली गल सानू वॉवल्स कहे सुनाए जांदे आ। ठीक है जी। वॉवल्स का नाम लिता जाता है पहली बार इंग्लिश क्लास दे विच। तां वॉवल्स की ने? वॉवल्स वो हुंदे ने ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੋਵਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 3 ਵੋਵਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 5 ਵੋਵਲ ਨੇ A, I, E, O, U, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 3 ਵੋਵਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਊੜਾ, ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਊੜਾ, ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਇਹ 3 ਵੋਵਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕੀ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕੀ ਨੇ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 3 ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੇ ਨਾ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 10 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੱਜਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਲੌਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? मैं लख कोशिश कर ਲਾਂ, मैं कदे सूरज नहीं लिख सकती, ना ही सूरज तुहानूं बोल के दिखा सकती है। तो इसे कारण असीं कहने हैं कि वह चिन्ह जो अखरां या शब्दां दे उच्चारण विच मदद करते हैं, तो उन्होंने असीं कहने हैं लगा मात्रावां। वह चिन्ह जो अखरां या शब्दां दे उच्चारण विच सहायक सिद्ध होण, मदद करन, तो उसनूं असीं कहांगे लगा मात्रावां। पंजाबी दीयां 10 लगा मात्रावां ने। सियारी, बिहारी, जिहड़ी अगे पैंदी है सियारी, पिछे पैंदी है बिहारी,
हौड़ा, घनौड़ा, लां, दलावां, कन्ना, औंकड़, दलौंकड़ ते मुक्ता लग। मुक्ता लग, मुक्ता लग की हुंदी है कोई भी इहो जिहा अखर जिन्हों किसी लगा मात्रा की लोड़ नहीं हुंदी, किसी लगा मात्रा की लोड़ नहीं हुंदी। फॉर एग्जाम्पल मैं सूरज लिखना सी, मैनूं दलौंकड़ चाहिए सी तो वो मुक्ता लग नहीं हुई। उस तरह जे मैं कमर लिखना है, कमर, मैनूं किसी सिहारी बिहारी औंकड़ दलौंकड़ की लोड़ नहीं, तो एक ही एक मुक्ता अखर है। कोई भी इहो जिहा अखर जिन्हों कोई लगा मात्रा ना लगी होवे उसनूं असीं कहांगे मुक्ता अखर। ठीक है जी, कर दे। हुण आपां गल करदे लगाखर दी। लगाखर की हुंदे आ, जिवें हुणे आपां लगा मात्रावां कीतीआं कि ओह चिन्ह जो अखरां दे उच्चारण विच सहायता करदे हन उन्हां नूं असीं कहने आ लगा मात्रावां। हुण लगाखर की हुंदे आ, इन्हां दी एक पर्टिकुलर स्पेस हुंदी है, जगह हुंदी है कि इन्हां दा आही जगह है भी इन्हां ने इत्थे ही रहना है, इदों बाद किते नहीं जाना। जिवें की आ ओह चिन्ह जो लगा मात्रा तो बाद होंदे ने। लगा मात्रावां कितनियां अपणियां 10, उन्हां 10 लगा मात्रावां तो बाद ही यह लगाखर वरते जाणगे। तो ये लगाखर किहड़े किहड़े ने? ये दो ने, तीन ने अपने, बिंदी, टिप्पी ते अद्धक। बिंदी, टिप्पी, अद्धक, ये अपने 3 लगाखर ने जिहड़े हमेशा की है किसी भी लगा मात्रा तो बाद वरते जाणगे। जिवें मैं एक एग्जाम्पल दिन्नी है तिन्हां दी। बिंदी दी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं गेंद लिखदी है, गेंद की है लगा मात्रा लावां तो बाद लगी है। उस तरह बिंदी है, बिंदी नूं मैं लिखा जे छिंदी, किसी भी लगा मात्रा तो बाद लगी है टिप्पी। उस तरह अद्धक की जे गल करा मैं कहां सिद्धी, सिद्धी, ये भी की है अद्धक है जिहड़ी ओह लगा मात्रा सिहारी ते बिहारी तो बाद लगी है। ठीक है जी। हुण इहदे विचों पेपर 'च क्वेश्चन की आउंदा है, क्वेश्चन पेपर दे विच इह पुछदे आ कि बिंदी लगाखर दे नाल किन्नियां लगा मात्रावां लगदियां ने, टिप्पी नाल किन्नियां लगदियां ते अद्धक नाल किवें लगदियां। तो इहदे लई एक फॉर्मूला बनिया होया है। फॉर्मूला की है 643। सीक्वेंस यही याद रखनी है, बिंदी, टिप्पी, अद्धक। बिंदी नाल 6 लगा मात्रावां लगदियां, टिप्पी नाल 4 लगा मात्रावां लगदियां, अद्धक नाल 3 लगा मात्रावां लगदियां। किहड़ियां लगदियां ये करन दी कोई जरूरत नहीं हैगी क्योंकि वो याद करना थोड़ा जो कॉम्पलीकेटेड हो जाए तो एग्जामिनर इहो जिहे क्वेश्चन भी नहीं पुछदा। ठीक है जी। नैक्सट आउंदियां अपनियां स्वर धुनियां। स्वर धुनियां की ने? स्वर, स्वर की ने अपने 3 स्वर ने, किहड़े किहड़े? ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी। ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी, इन्हां 3 स्वरां दे नाल जदों लगा मात्रावां किन्नियां ने अपनियां 10। 3 स्वरां दे नाल 10 लगा मात्रावां जदों अटैच हुंदियां ते डिफरेंट टाइप दीयां आवाज़ां आउंदियां तां उन्हां आवाज़ां नूं असीं कहने हैं स्वर धुनियां। ठीक है जी। हुण देखो 3 अपने स्वर किहड़े ने? ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी। हुण इहदे लई भी एक फॉर्मूला याद रखना है 343। पहला 643, हुण 343। की रखना इहदे विच याद कि ऊड़े नाल 3 लगा मात्रावां लगदियां। किहड़ियां किहड़ियां ये याद रखना पऊगा, इहदा कोई फॉर्मूला नहीं हैगा। पहला हैगा अपना ऊड़े नूं औंकड़, ऊड़े नूं दुलैंकड़ ते ऊड़े नूं हौड़ा। ऊड़े नूं हौड़ा, जिहड़ी उपर आए आपां मूँह जा खोल दिंदे हुंदे ऊड़े दा। ठीक है जी। उस तरह आड़ा, आड़े नाल मुक्ता मतलब कोई लग नहीं, आड़े नूं कन्ना, आड़े नूं दलां ते आड़े नूं घनौड़ा। ये हो गई 4 आड़े दियां लगा मात्रावां। सेम प्रोसैस ईड़ी दा, ईड़ी सिहारी, ईड़ी बिहारी ते ईड़ी नूं लां। ये हो गई अपनियां 10 स्वर धुनियां। तो पंजाबी दियां जे तुहानूं पुछ लैण किन्नियां स्वर धुनियां, तो पंजाबी दियां 10 स्वर धुनियां जिहड़ियां लगा मात्रावां 10 ऊड़े, आड़ी, ईड़ी स्वर दे नाल लग के पूरियां मन्नियां जांदियां। ठीक है जी। अगे नोट है इंपॉर्टेंट है, इनू मार्क करो। मुक्ता अखर की हुंदे आ? कोई भी इहो जिहा अखर जिस दे नाल कोई लगा मात्रा ना लगी होवे, कोई लगा मात्रा ना लगी होवे उसनूं असीं मुक्ता अखर कहने हाँ। ये इंपॉर्टेंट है, इनू नोट कर लियो। मुक्ता अखर वो अखर जिस नाल कोई लगा मात्रा ना लगी होवे नूं असीं मुक्ता अखर कहंदे हां। फॉर एग्जाम्पल कसरत, मटर, कमल, हलचल, उस तरह अदरक, सर्कस, कुछ भी हो सकता है। इहो जिहा अखर जिस दे नाल लगा मात्रा ना लगी होवे उहनूं असीं कहांगे मुक्ता अखर। नैक्सट आपां गल करन लगे हां व्यंजन दी। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, वो अखर ठीक है जिहड़े स्वरां तो बिना रह जांदे आ, वो सारे की ने अपने कॉन्सोनेंट ने।
ठीक है। मतलब स्वर की है अपने ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी, इदों बिना जिन्ने अखर रह गए वो सारे व्यंजना की कैटेगरी दे विच आउंदे आ। हुण इहदे विच देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पंजाबी वर्णमाला विच कुल किन्ने अखर हैं, कुल किन्ने अखर हैं। जे तो सानू अजोका समा किया फिर तो असीं सारे लिखांगे, सारे काउंट करांगे, 35 ते 6 41 हो जाएंगे। ठीक है। जे सानू कुछ नहीं किया, अजोका समा या हुण दा टाइम नहीं पूछा, तो असीं डायरैक्टली कहांगे कि 35। तो अखर किन्ने ने? 35। अजोके अखर किन्ने ने? तो 35 ते 6 41 टोटल अखर ने अपने। ठीक है जी। तो 6 जिहड़े ऐड नवे होए आ वो किहड़े किहड़े ने? वो अपने पैर बिंदी वाले ने, सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी ते लल्ले पैर बिंदी। ठीक है। इन्हूं तुसीं पढ़ सकते हो शख गज फल, शख गज फल, तुहानूं सीक्वेंस याद रहे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जिहड़े अखर है लए किस भाषा तो गए ने, किहड़ी भाषा तो असीं बोरो कीते ने? तां ये असीं लिते आ फारसी भाषा तो, फारसी लैंगुएज तो बोरो किते हैं ये 6 अखर। ठीक है जी। हुण देखो स्टार्टिंग दे विच पहला जिहड़ा ऊड़ा आड़ा ईड़ी है कि अपने स्वर ने। ठीक है। उस तो बाद आउंदे है कि पंजाबी वर्णमाला विच कुल किन्ने वर्ग हैं, पार्ट्स किन्ने ने, भाग किन्ने ने? तां ओह किन्ने ने अपने? जिवें पहला वर्ग हो गया अपना उत्तम वर्ग। ठीक है जी। पहला वर्ग हो गया उत्तम वर्ग, दूजा वर्ग हो गया अपना क वर्ग, उत्तम वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतिम वर्ग, तो उदों बाद आंदा अपना नवीन टोली या कह लो नवीन वर्ग, जिहदे विच अपने पैर बिंदी वाले सारे अखर आ जाते हैं। ठीक है जी। पंजवां क्वेश्चन ये बनता है कि पंजाबी वर्णमाला विच नासकी या अनुनासकी अखर किहड़े ने या किन्ने ने? तां पंजाबी विच अनुनासकी अखर अपने 5 ने, नईया, यईया, नाना, नन्ना ते मम्मा। हुण अनुनासकी या नासकी अखर की हुंदे आ? अनुनासकी या नासकी वर्ड का जिहड़ा संबंध है वह हैगा नक नाल। ਇਹੋ ਜਿਹੇ अखर जिन्हां दा उच्चारण करते समय सानू लगे कि साडा नक नाल बोल रहा। फॉर एग्जाम्पल नईया, यईया, नाना, नन्ना, मम्मा, नक चो आवाज़ डबल होके आउंदी है, दैट इज कॉल्ड नासकी या अनुनासकी अखर। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है धुनियां विचों क्वेश्चन आउंदा है कि एक लाइन देती थोनों कक्का खखा गग्गा घग्गा नईया, दसो कि ये केड़ी धुनी है? कंठी है, कोमल तालवी है, दंती है, दो होठी है या केड़ी है? तो यह काम बिल्कुल ईजी हैगा, ये प्रैक्टिकल काम हैगा। चाहे थोनों नहीं पता, तुसी नहीं पढ़िया कुछ, तो फिर भी तुसी की कर सकते हो, इन्हां चीज़ों को प्रैक्टिस करके आंसर टिक लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कक्का खखा गग्गा घग्गा नईया बोले, नाल की है मेरा गला बोल रहा, कंठ बोल रहा, तो असीं इहनूं कहांगे कंठी धुनी। ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ जिन्हां दी आवाज़ साडे कंठ चों आवे, साडा ये लगे कि साडा कंठ गला साडा नाल बोल रहा है, तो उन्होंने असीं कहांगे कंठी धुनी। चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा नईया, हुण इन्हां नूं जदों बोलदे जिहड़ी साडी जीभ है ना उपरला जिहड़ा तालू है, कोमल तालवा है, ठीक है, उन्होंने टच करती है, तो असीं इहनूं कहांगे कोमल तालवी धुनी। ठीक है जी। फिर टैंके वाली लाइन आ गई, टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाना, ये हैगी है उल्ट जीभी धुनी, साड़ी जीभ है जी फोल्ड हो जाती है बोलन लगे, टैंका ठट्ठा। ठीक है। नैक्सट फोर्थ आती है अपनी दंती धुनी, तत्ता थत्था दद्दा, जो तुसीं बोलते हैं जीभ का जिहड़ा मूरला हिस्सा है वो साडे उपर दंदां दे नाल टच हुंदा, तो असीं कहने आ दंती धुनी है, ये दंदां नाल बोली जाण वाली धुनी। तीसरी ते लास्ट अपनी हैगी है पप्पा फप्फा बब्बा भब्बा मम्मा, ये साडे लिप्स दोनों लिप्स आपस में टच होंगे है, तो असीं कहांगे ये हैगी है दो होठी धुनी, दो होठी धुनी। ठीक है जी। लास्ट यईया रारा लल्ला वावा डाड़ा, इन्हां दे विचों मेन की है यईया ते वावा, ये दोनों हैगे ने सैमी वोवल, ये दोनों की ने सैमी वोवल ने, इत्थे नोट कर ही लैने। सैमी वोवल का मतलब की हुंदा है? सैमी वोवल मतलब अर्ध स्वर। स्वर की से अपने ओह अखर जिन्हां दे उच्चारण समय हवा बेरोक शब्दों के रूप में बाहर आती है। इन्हां वेले की है कुछ का आवाज़ साडी बाहर आ जाती है तो कुछ का आवाज़ साडी अंदर ही दब जाती है, तो असीं इन्हां नूं कहने आ अर्ध स्वर। ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्ध स्वर किहड़े ने? यईया ते वावा दोनों अर्ध स्वर ने। ठीक है जी। नैक्सट
उस तो बाद गल आती है अल्प प्राण धुनी ते महाप्राण धुनी दी। अल्प प्राण धुनी ते महाप्राण धुनी। अल्प का मतलब की होंदा, अल्प का मतलब होंदा है घट या कह लो शॉर्ट। प्राण मैंने होंदा साह, घट साह धुनी। एहो जी धुनी जिहदे उच्चारण समय साह की मात्रा बहुत घट लगती है, ठीक है, तो उन्होंने असीं कहने अल्प प्राण धुनियां। तो अल्प प्राण धुनियां किहड़ियां-किहड़ियां ने? इस पूरे चार्ट दे विचों पहली ते तीसरी लाइन, पहली ते तीसरी लाइन रिप्रजेंट करती है अल्प प्राण धुनियां नूं। इन्हां धुनियां दे उच्चारण समय साह की मात्रा बहुत घट लगती है, ठीक है जी। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम रिप्रजेंट द अल्प प्राण धुनी, ठीक है जी। फिर ये उल्ट आती है महाप्राण धुनी। महा का मतलब होंदा वध या कह लो वधेरे, वधेरे साह वाली धुनी, वधेरे साह वाली धुनी। एहो जी धुनी जिहदे उच्चारण समय साह की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है, उन्होंने असीं कहने महाप्राण धुनी। इहदी नोटेशन की है? सैकेंड ते फोर्थ कॉलम, सैकेंड एंड फोर्थ कॉलम नूं असीं कहांगे कि महाप्राण धुनी है। आड़ा खखा झज्जा ढड्डा थत्था फफा रारा, ठीक है, सस्सा घग्गा झज्जा ढड्डा धद्दा भब्बा ते वावा, ये सारे की ने अपने महाप्राण धुनियां ने, ठीक है जी। सो अज ते आपां इस लैक्चर दे विच भाग 1 व्याकरण का जिहड़ा पहला बोध सी वो कंप्लीट कीता है, दैट इज़ कॉल्ड धुनी बोध। नैक्सट आप गल करते हैं धुनी दियां किस्मां। धुनी किन्ने तरह की होंदी है, ठीक है जी। धुनी 2 किस्मां की होंदी है। नंबर 1 है खंडी धुनी, नंबर 2 है अखंडी धुनी। खंड का मतलब की होंदा? खंड का मतलब होंदा है किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ठीक है। तो खंडी धुनियां की होंदियां? ये वो वालियां धुनियां होंदियां जिन्हां दी पहचान असीं निक्के निक्के टुकड़ियां विच करके करते हैं। जिवें हुणे आपां पिछला चार्ट कीता हैगा, पूरा उड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक लिखिया सी, ते हरेक अखर, हरेक लाइन, हरेक कॉलम, हरेक रो बारे दस्सिया है कि ये वाली लाइन की रिप्रजेंट करती है, ये लाइन की रिप्रजेंट करती है। तो उहनूं असीं कहांगे खंडी धुनी। तो खंडी धुनियां भी अगे 2 तरह दी होंदियां, स्वर ते व्यंजन, जो असीं पिछले पार्ट दे विच कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले कंसैप्ट विच क्लीयर कर चुके हैं। हुण दूजी आउंदी अपनी अखंडी धुनी। अखंडी धुनी इहो जिहियां धुनियां होंदियां जिन्हां नूं असीं तोड़ के निक्के निक्के भागां विच वंड के नहीं देख सकते। तो अखंडी धुनी दीयां 4 टाइप्स ने। पहली हैगी है बल ते दबा, दूजी हैगी है सुर, तीजी है ताल ते चौथी है नासिकता। बल ते दबा, बल ते दबा की हुंदा? कोई भी इहो जी धुनी या कोई भी इहो जिहा अखर जिन्हों बोलन लगे साडा जोर काफ़ी लगे, ठीक है, तो उन्होंने असीं कहने बल ते दबा। किसी भी अखर उपर जे असीं बल पाउणा है, दबाव पाउणा है, प्रैशर पाउणा है, तो उहदे लई असीं इस्तेमाल की करते हैं? यूज ऑफ अद्धक। अद्धक का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल असीं कद बोलना है, कद बोलना है तो अद्धक पावांगे कद, ठीक है। पक्का, पक्का लिखना है तो हुण मेरे कक्के ते जोर पै रहा, तां तो है नहीं जी, तो जोर पै रहा मैं उन्होंने डबल करके लिख दूंगी, नहीं। तो डबलेट नूं असीं इग्नोर करन दे लई की यूज किया? अद्धक का इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तीसरी आंदी है अपनी, दूसरी आंदी है सॉरी अपनी सुर। सुर की होंदी है पिच, बोलन का थोड़ा लहजा की है। बोलन का लहजा इन द सेंस कि तुसीं उच्ची बोल रहे हो, नीवी सुर च बोल रहे हो या मध्यम सुर च बोल रहे हो। तो सुर 3 तरह की होंदी है, उच्ची, मध्यम ते नीवी। उच्ची सुर चीकना, भाषण देना, ठीक है जी। मध्यम सुर एक सिंपल लहजे के नाल कम्यूनीकेट करना किसी नाल, जिवें मैं तुहाडे नाल कम्यूनीकेट कर रही हाँ। नीवी, नीवी मतलब चुगलियां करनियां, ठीक है जी। तो यह होगी पिच। तीसरी गल आउंदी है ताल। ताल का मतलब की होंदा टोन, कि तुहाडे बोलन का लहजा की है, तुसीं रूड वे नाल बोल रहे हो, प्यार दे लहजे नाल बोल रहे हो या किद्दां बोल रहे हो, ठीक है। तो टोन का संबंध काहदे नाल है? ताल का संबंध हमेशा सेंटेंस नाल हुंदा है कि वो सेंटेंस की है। जे तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो तुसीं कहोगे तो बड़ा ही वधिया बोलदा है, जे उही सेंटेंस थोड़े ओपोजिट बोल रहे हैं, थोड़े अगेंस्ट बोल रहे हैं, तुसीं कहोगे तो बुरा तो बंदा ही कोई नहीं। तो ये की हो गया? टोन, टोन होगी उस परसन की, ताल होगी। तो उस ताल का संबंध काहदे नाल है? सेंटेंस नाल है, ठीक है जी।
चौथी गल है नासिकता। नासिकता मैं पहला भी दस के गई हाँ कि वो अखर जिन्हां दे उच्चारण समय आवाज़ साडे नक चों आउंदी है तो उहनूं असीं कहने नासिकता। नासिकता नूं प्रगट करन लई किहड़े अखरां दा इस्तेमाल किया जाता है, किहड़े चिन्हां दा इस्तेमाल किया जाता है, तो इहदे विच यूज़ किया जाता है बिंदी ते टिप्पी दा, बिंदी ते टिप्पी दा। ठीक है जी, जिवें हुण मैं इत्थे लिखां मैं छां बोलना है, छां छां जो बोलिया मेरे नक चो आवाज़ आ रही है तो मैं बिंदी लगाती। दूजी गल एक याद रखनी है कि कदे भी कन्ने दे नाल टिप्पी का इस्तेमाल नहीं हुंदा, कन्ने दे नाल टिप्पी का इस्तेमाल नहीं हुंदा। कदे भी देख लो जिथे थोड़ा कन्ना आऊगा, कन्ने दे नाल आंदी नक चो आवाज़ आऊगी ना, तो उत्थे कदे भी तुसी टिप्पी नहीं, हमेशा बिंदी का ही यूज़ करोगे हमेशा। ठीक है जी, ये गल याद रखनी है, बेस हैगा पंजाबी का। ठीक है जी, ये सी अपनी नासिकता। ठीक है जी, अज का जिहड़ा लैक्चर सी उहदे विच आपां व्याकरण के भाग पहले बारे पूरी जानकारी हासिल की है, जिहदे विच की सी धुनीबोध। धुनीबोध का दूजा नाम की है वर्णबोध। ठीक है जी, फिर फरदर उन्हां दे विच किहड़े-किहड़े कंसैप्ट आउंदे ने, स्वर आउंदा है, दुत्त अखर आउंदा है, लगा मात्रावां, लगाखर, दुत्त अखर, व्यंजन। ठीक है, नैक्सट फिर धुनी दियां किस्मां कीतियां, खंडी हुंदियां, अखंडी हुंदियां। खंडी दो तरह दियां हुंदियां जिन्हां दा असीं भाग कर करके देख सकते हैं। अखंडी जिन्हों असीं तोड़ मरोड़ नहीं सकते उन्हां नूं असीं कहने अखंडी धुनियां। ठीक है, आई होप ये लैक्चर तुहाडे लई बेनीफिशियल साबित होऊगा। सो जे चैनल तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो अज ही कर लो, वीडियो नूं शेयर लाइक ते कॉमेंट करना तां जो सानूं भी उत्साह मिले तो तुहाडे लई असीं होर बेनीफिशियल वीडियोज़ लैके आ सकीए। ओके जी, थैंक यू।